Happy Mother's Day, Happy Father's Day, Happy Family Days. This is all business. But قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھو، تدبر کرو، سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، اور ایک بچے کو ریز کرنے کے لیے جتنی ماں کی ضرورت ہے اتنی ہی باپ کی ضرورت ہے. No family is complete without mother, father, and of course the family members. آج ہیپی فادرز ڈے کے حوالے سے مجھے کہا گیا تو میں یہ کہتی ہوں کہ باپ ہو یا ماں ہو، کسی بچے کی زندگی کو مکمل ہونے کے لیے، اس کی شخصیت کو مکمل ہونے کے لیے جتنی ماں کی ضرورت ہے اتنی ہی باپ کی ضرورت ہے. دونوں میں سے ایک کی کمی جو ہے وہ زندگی میں بہت کچھ ادھورا چھوڑ دیتی ہے. ہیپی فادرز ڈے. اور فادر بننے سے پہلے ہمارے بیٹے، ہم تو مائیں، ہم تو عورتیں وہ ہیں کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے ساتھ چلتا ہو تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں دنیا کا کتنا بڑا گارڈ میرے ساتھ چل رہا. اور باپ تو ایک چھتری جو پورے گھر کو سنبھالتی ہے. ہیپی فادرز ڈے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے. ایک بات کا میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہمارے مرد گھر میں کھانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہوتا ہے کہ گھر کا آدمی، اس کے لیے خاص کھانا پکتا ہے. وقت چینج بہت ساری چیزیں کی ہیں، مگر آپ بہت امپورٹنٹ ہیں. تمام فادرز، یو آر جسٹ لائک روف آف دا ہاؤس. آپ بھی اپنی بیٹی، اپنی بیگم اور اپنی بہنوں کو مکمل سیکورٹی دیں. I love you all. Happy Father's Day to all my brothers, my elders, and my young children. But let me tell you, being a father is a responsibility as well. It's a big time responsibility. Now, once we become mother and a father, پھر ہمارا اپنا وجود گم جاتا ہے. پھر ہم کو جینا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور دنیاوی طور پہ کسی رفٹ کو درمیان میں مت آنے دیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو مکمل شخصیت بنا سکیں. I wish you all Happy Father's Day. Councilor Rod Power, and I'm here in City Hall, and I just want to wish everybody, all the fathers celebrating, Happy Father's Day. Myself, I have 3 kids, beautiful kids. I know they don't listen all the time, but I can't wait to spend the day with them. Maybe take some time, do whatever you got to do. Go camping, hiking, or just relax at home. Maybe they can do the dishes. Maybe they can cut the grass. But more importantly, that day is for the fathers. So Happy Father's Day from everybody here at City of Brampton. دس از شازیہ ملک. ہیپی فادرز ڈے. اور آج میں بہت یاد کر رہی ہوں اپنے فادر کو. یہ جو آپ کانفیڈنٹ عورت اپنے سامنے دیکھتے ہیں، حالانکہ چھوٹی سی ہے لیکن پھر بھی یہ کانفیڈنس سب سے پہلے مجھے میرے والد صاحب نے دیا. لیکن مین بات انہوں نے مجھے کہا کہ ایجوکیشن لینا بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے آپ کو اکوپ کرتے ہیں اچھے ایجوکیشن سے تو آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف یہ اسٹرینتھ مجھے نہیں دی یا میرے بھائی کو، ہمیں انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ رزق حلال کمانا ہے، سچ بولنا ہے، کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے شاید ہوئیں گے کہ میں آپ کو بہت بولڈ نظر آتی ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ بہت اگریسو ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم اگریسو نہیں ہیں. میرے جیسی عورتیں فرم ہیں اپنے بلیف میں، اپنے کام میں، جو ہمیں پتہ ہے. میں اور میرے والد صاحب کا بہت ہی ڈفرینٹ ریلیشن شپ تھا. وی نیور سو آئی ٹو آئی، لیکن ہم ہارٹ ٹو ہارٹ ہمیشہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. اور مجھے جو ان سے اسٹرینتھ ملتی تھی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں میں نے کام کیا، لوگوں نے اس کو بہت ایڈمائر کیا، کیونکہ جو انہوں نے مجھے جو پرنسپلز مجھے اور میرے بھائی کو بتائے تھے وہ لوگوں نے بہت ایڈمائر کیے. آج کل کے زمانے میں ہمیں نہ صرف باپ کو بلکہ ماؤں کو بھی اپنے بچوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ سچائی سے، رزق حلال کمانے سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اینڈ یس، آپ کو ایٹ دا پوائنٹ آف یور اسٹرینتھ جو ہے بات کرنی چاہیے، اور اپنے جو
آپ کے جو بھی کوئی ہیں جو مسئلے ہیں وہ آپ حل کر سکتے ہیں اچھی ایجوکیشن سے. تو جیسے میرے باپ نے یا میرے جو نانا جی نے یا میرے ماموں نے یا دوسرے جو فیملی کے مرد تھے انہوں نے اپنی بچیوں کو اچھی ایجوکیشن دی, تو میں بھی آپ کو یہی بولنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنٹ عورتیں آپ اسی وقت بنا سکیں گے جب آپ ان کو اچھی ایجوکیشن دیں گے. تو آج میں اپنے فادر کو یاد کرتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ میں آپ کو مس کرتی ہوں, اور اس وقت تو میں نے آپ کو شاید بہت میں نے آپ سے لڑائیاں بھی کی, بٹ آئی لو یو, آئی وانٹ ٹو سے دس اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو یو دس کریڈٹ, وٹ ایور آئی ایم بیکاز آف یو and my brother and all the other men and dads in my family جنہوں نے ہم لڑکیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہو کے ہمیں سپورٹ کیا. So I love you. السلام علیکم, میرا نام عامر احمد ہے, ہم ای آواز ٹیم کا حصہ ہوں. فادرز ڈے کے لیے میرا میسیج ہے کہ سب سے پہلے تو تمام فادرز جو اس دنیا میں ہیں ان سب کو ہیپی فادرز ڈے. اور جہاں تک میرے والد صاحب کی بات میں اگر کروں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں کہ الحمدللہ اللہ نے جو ہے ان کو زندگی دے, ان کو صحت دے, تندرستی دے. ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے ہمارا خیال رکھا, ہم سب بھائیوں کا, بہن کا اور پورے سب کا, خاص کر میرا کیونکہ میں بڑا بیٹا ان کا, تو ان کا پیار اور سختی دونوں میرے ساتھ بہت تھی. اور اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے, اور میں ان کی نصیحتیں اور ان کا جو ایک کردار ہے میں چاہوں گا کہ اس کو اپناؤں اور میری اولاد جو ہے پھر اسی طریقے سے اس کو فالو کرے. تو آپ سب کو میری طرف سے ہیپی فادرز ڈے. جی السلام علیکم, میرا نام سمینہ ہے, میں 770 AM ٹیم کی ایک ممبر ہوں, اور میری طرف سے تمام لوگوں کو ہیپی فادرز ڈے. الحمدللہ جن جن کے والد حیات ہیں اللہ میاں ان کو صحت دے, زندگی دے, اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے. اور جن کے والد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ میاں ان کی مغفرت عطا فرمائے, اور ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. آپ سب کو ہماری طرف سے ہیپی فادرز ڈے. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰ ਅਤੇ ਵਿਊਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਫਾਦਰਸ ਡੇ. ਇਸ ਫਾਦਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮਿਸ ਯੂ ਡੈਡੀ ਐਂਡ ਲਵ ਯੂ ਡੈਡੀ. جی السلام علیکم, میرا نام وکاس کوندل ہے, اور فادرز ڈے پہ میں سبھی کو ہیپی فادرز ڈے کہنا چاہوں گا. اور باپ کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والد کی اہمیت میرا خیال ہے تب تک انسان کو پوری طرح نہیں پتہ ہوتی جب تک اس کے اپنے بچے نہ ہو جائیں, اور جب تک ان بچوں کو جب وہ باپ بنتا ہے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بچے پالنا اور ان کو ریز کرنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جتنے بھی باپ ہیں دنیا میں دے ڈیزرو اوور رسپیکٹ, سلیوٹ. اور سیکنڈلی کہنا یہ چاہوں گا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کیا سکھایا, ایک چیز جو انہوں نے سب سے زیادہ ہمیشہ ایمفیسائز کیا کہ اللہ پہ توکل کرنا سیکھو. کبھی بھی کوئی پریشانی ہو, کچھ بھی ہو, تو اللہ پہ توکل کیا کرو, اللہ سے مانگا کرو. کسی اس لیے پریشانی یا دنیاوی پریشانیاں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ایک چیز میری انہوں نے, ویسے تو سبھی کچھ ظاہر ہے انہوں نے سکھایا, لیکن یہ ایک بہت بڑی بات جو انہوں نے میرے دماغ میں ڈالی بچپن سے لے کے آج. آپ اب بھی جب بھی تلقین کرتے ہیں, جب بھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, تو جو اینڈ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پہ توکل ہے. تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ میں نے سیکھا. باقی ظاہر ہے تمام فادرز جو ہیں دنیا میں وہ اپنے بچوں کی سب سے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور باپ ایک واحد شخص ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے. ایون کہ بھائیوں میں بھی جیلسی شاید آ جاتی ہے, باقی کزنز میں آ جاتی ہے, دوستوں میں آ جاتی ہے, لیکن باپ ایک واحد انسان ہے جو آپ کی کامیابی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور آپ کے لیے دعا گو ہوتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم, مائی نیم از عامر شمسی. ساز و آواز کی ٹیم کو, ای آواز ٹی وی 770, آپ سب کا بہت بہت شکریہ فار کمنگ آؤٹ ود دس امیزنگ پروگرام آف فادرس ڈے. مینو جی, آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کا, عارف بابا جی, ڈن اے گریٹ جاب. ہیپی فادرس ڈے. اور عید بھی ابھی گزری ہے, سو عید مبارک بھی. فادرس ڈے کے حوالے کہنا چاہوں گا کہ والد صاحب, باپ ایک ایسا مضبوط ستون ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر, پوری فیملی کو لے کے چلتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ساری عمر, چاہے ہم ہوں, ہمارے بہن بھائی ہوں, ہم نے چچاؤں کو دیکھا, پھوپھیوں کو دیکھا, خالوں کو دیکھا کہ ماں کے ساتھ ہمیشہ بہت زیادہ کلوز رہتی ہے, اور باپ کے ساتھ لڑکوں کا اسپیشلی ایسا لگتا ہے کہ ایک فاصلہ رہتا ہے. کیا وجہ مجھے آج سمجھ نہیں آئی. میرا بھی باپ کے ساتھ رہا, میرے بچوں کا میرے ساتھ ہے, لیکن اینڈ آف دی ڈے اف یو سی والد از somebody who is always working without asking for any return. آپ دیکھیے گا کہ آپ کا باپ ساری عمر جو بھی کیا ہوگا آج تک نہ انہوں نے آپ کو جتایا ہوگا,
ना कभी आपसे कुछ पूछा होगा. He just wants to make sure on one thing कि आप ज़िंदगी में तरक्की करें और whatever he can do the best for you he'll do it. मेरे वालिद साहब ही की वजह से मैं आज कनाडा में हूँ, जो पढ़ने उन्होंने मुझे भेजा, और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, उनको उन पर रहम फता फरमाए. उनकी बुढ़ापे में आकर मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से होता है कि अगर वालिदैन आपके साथ हैं तो लगता है इट इज़ काइंड ऑफ हार्ड टू डील विद देम, क्योंकि वो बातें भूल जाते हैं, वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं. लेकिन जिनके बच्चे हैं, जिनका बच्चा 1.5-2 साल का है, हमें उन पे प्यार आता है जब वो ऐसी चिड़चिड़ापन करते हैं. लेकिन हम जब वालिदैन बूढ़े होते हैं तो हमें गुस्सा और झंझनाहट आती है. ये चीज़ अगर आप थोड़ा सोच लें तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, और आपको अल्लाह की तरफ से इसका इनाम मिलेगा. तो आप सबको हैप्पी फादर्स डे. और कोशिश करिएगा, मैं भी कर रहा हूँ, मुझसे भी बहुत कोताहियाँ होती हैं, कोशिश करिएगा कि माँ बाप अगर आपके साथ रह रहे हैं या माँ बाप आपके ज़िंदा हैं तो जितना आप उनको टाइम दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि वंस दे आर गॉन यू विल मिस इट बिग टाइम. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहसिन शौकत अली. आज फादर डे है. ऐसी शख्सियत के बारे में इंसान क्या कहे, माँ और बाप, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने हमें अल्लाह ताला का, सरकार दो आलम का तारुफ़ करवाया. और जैसे इंसान कहता है कि परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे, इसी तरह माँ बाप हैं, और उसमें एक हस्ती है बाप की. मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ और तारुफ़ जो है वो पाकिस्तान के और पंजाब के कल्चर के हवाले से शौकत अली साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं. मैंने हमेशा उनको बड़ी शफ़क़त में अपने मुल्क से मोहब्बत करते, अपने लोगों से मोहब्बत करते हुए देखा है. मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी इबादत जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ वक्त स्पेंड करने का है. ये दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं ये बेकार हैं अगर आपने अपने माँ बाप की दुआ नहीं ली, जो यहाँ हैं, जो दियार गैर में है ख़ास तौर पे, और जो पाकिस्तान में है. उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जो भी आपके पास काम के अलावा वक्त हो वो अपने बाप के कदमों में बैठें, अपनी माँ की कदमों में बैठें, क्योंकि जन्नत भी यहीं से मिलनी है और दोज़ख भी यहीं से मिलनी है अगर आप उनकी कदर नहीं करते. बाकी ये फादर डे जो है ये 365 दिन का है, मदर डे भी 365 दिन का है, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पे हमें एक दिन फादर का होता है. मेरे नज़दीक मेरा ईमान, मेरी जान, और यहाँ तक कि ईमान से की तरह हैं वो पेरेंट्स हैं, क्योंकि नमाज क्या है, दीन क्या है, रिश्ते क्या हैं, ये सब कुछ आपको आपके घर से मिलता है. तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने माँ बाप की कदर करें, जो हैं वो उनके साथ वक्त स्पेंड करें, और जो दुनिया से चले गए हैं वो उनकी कब्रों पे जाएं हर जुमेरात को और उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये वक्त हम पे भी आना है. बहुत शुक्रिया. My name is Isra Nasser. I am a mental health therapist and the author of Toxic Productivity, which is a book about how to feel good about your self-worth and your achievements. This Father's Day, I want to share a really important message to all the fathers out there who have daughters who might have really big dreams. And that message is, please support them in reaching their dreams, because it's very important for fathers to support their daughters, just like my father did. Hello everyone. My name is Elia, and I'm in SK. I hope you guys have a great Father's Day. I hope you love your daddy. I love my dad too. Hi, my name is Aisha and I am grade 2 and I love art. Happy Father's Day. जी अस्सलाम वालेकुम. ये मेरे हाथ में फिर माइक जो आ गया, ये तो ई आवाज़ का है भाई. ई आवाज़ से मेरी कोई आज की पहचान तो नहीं है ना. मैं तो यहाँ प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है. साडा की बनेगा, मेरा प्रोग्राम उत्थे चलता रहा पंजाबी वाला. आज तुसी पूछ रहे हो कि असी वालिद साहब नूं कोई पैगाम दे दईए. ओ भाजी, वालिद साहब जदों असी अपनी तस्वीर देखी दे ना चिट्टे वालों दे विच शीशा देखी दा, तो मैनू हर रोज़ अपने वालिद साहब नज़र आते हैं.
ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਰਤੋ, ਵਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ, ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਫਾਦਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। Happy Father's Day। मैं अपने फादर को I'm very lucky to be sitting with my father today। मैं अपने वालिद को पिछले 40 साल से जानता हूँ, लेकिन कुछ ही साल पहले मुझे पता चला about what it means to actually be a father। So thank you for your sacrifices, thank you for your work and confidence that you've instilled in us for our family। तो अपना बेटा हुआ, अपने जब खुद बाप बना तो पता चला कि फादर्स डे की इम्पोर्टेंस क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स बिन ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राबिया काज़मी। सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे। और ये पहला फादर्स डे है जब मेरे फादर मेरे साथ नहीं होंगे, और ही पास्ड अवे लास्ट नवंबर। और मेरे लिए बहुत मुश्किल है फादर्स डे पे इसलिए भी बात करना कि मैं जितनी देर से इस दुनिया में हूँ मैंने अपने बाप को देखा है हमेशा, और पहली दफ़ा ऐसा होगा कि फ़ादर्स डे पे मैं गिफ्ट नहीं लूँगी उनके लिए, या नहीं लिए और नहीं उन्हें विश कर पाई, जो मैंने बहुत महसूस किया ये बात को। मेरे बच्चों ने बहुत मिस किया अपने नाना को, और बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उन सब के लिए जिनके पास उनके फ़ादर हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत इस दिन के लिए आपको मुबारकबाद। हर दिन को फ़ादर्स डे की तरह मनाएं और लाड करें, प्यार करें, रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, और बस सरप्राइज़ भी किया करें, गिफ्ट्स ला के दिया करें और ख़्याल रखा करें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का, जो शायद हमारे लिए छोटी होती हैं लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं। सिर्फ ये पूछ लेना आपने खाना खाया, आप रेस्ट करेंगे, आपको कलर कौन सा पसंद है, और बस सैरें करवाएं। जितनी ज़िंदगी पेरेंट्स जब तक आपके साथ होते हैं, बस उनके साथ हर दिन को हर डे को एंजॉय करें। हैप्पी फादर्स डे। ई आवाज़ टीवी के तमाम नाजरीन को हैप्पी फादर्स डे। और हैप्पी फादर्स डे जैसे कहते हैं कि मामा ठंडियाँ छावा, तो मैं कहूँगा जो फादर्स होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा घना सायादार दरख्त होता है जो कि आपको साए तले रखते हैं, हमेशा अपनी मुश्किलों में रह के बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और फादर जो है, देखो मैं जितनी हम इम्पोर्टेंस माँ को देते हैं इस्लाम में, मैं कहता हूँ फादर्स की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो पूरे एक सिस्टम को चला रहा होता है और उसके लिए वो कभी इजहार भी नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो करता जाता है। और माएँ जो हैं वो हमेशा नंबर ले जाती हैं, मामा ठंडिया जामा। तो मैं यही कहूँगा दोबारा कि जो बाप है वो भी एक बहुत गहरा तनावरदार दरख्त होता है जो कि आपको ठंडी छां देता है, और माँ भी उसी में रह के आपको ठंडी छां दे रही होती है। तो अगेन आप सबको बहुत बहुत हैप्पी फादर्स डे। लोगों को ये दिन मुबारक हो। वालिद बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर करनी चाहिए। यही हमारे दीन ने भी सिखाया है, और यही आइंदा नस्लों के लिए भी सबसे अच्छा पैगाम है कि वो पिछली नस्ल की खिदमात को फरामोश न करें। मेरा नाम फैयाज़ हैदर है और मैं यहाँ नायग्रा फॉल कनाडा में रहता हूँ। ये गनीमत है कि बच्चे अब फादर्स डे पे भी अहमियत देते हैं और अपने बाप को ढूंढ कर उनको फादर्स डे कहते हैं। ये एक अच्छी रविश है, ये होना चाहिए। इससे बाप को भी एहसास होता है कि बच्चे हमें भूले नहीं हैं, और कम से कम अगर साल भर नहीं आए तो कम से कम फादर डे पे तो ज़रूर आएंगे। इसी उम्मीद पे वो जी रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी मिले वो कम है,
اور اللہ ताला तमाम बच्चों को ये हिदायत दे कि वो अपने वालिदैन का ख्याल रखें, जिस तरह माँ का ख्याल रखते हैं वैसे फादर का भी ख्याल रखें. तो हैप्पी फादर्स डे टू एवरीबडी. थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम शाहिद अमीन मलिक है एंड ऑन द फादर्स डे मैं अपने फादर को पैगाम देना चाहता हूँ. हैप्पी फादर्स डे एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव डन फॉर अस. माय नेम इज़ सरफराज. मैं अपने अब्बू को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हैप्पी फादर्स डे. आपने हमारे लिए जो किया इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. मेरा नाम अनस है. फादर्स डे पे मैं बस ये पैगाम देना चाहूँगा कि हर कोई बाप जो होता है वो उनके लिए जितने शब्द उनकी तारीफ़ में कहे जाए कम है, और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मैं उनका हक़ अदा कर सकूँ उनकी फौतगी से पहले इंशाल्लाह. इस फादर डे की मुनासबत से मुझे कामरान ख़ान कहते हैं, आज इस अहम दिन के मौके पे, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक फ़ादर हूँ, ख़ुद भी वालिद हूँ तो और पिता हूँ, तो उसकी मुनासबत से बस आप सबको मुबारकबाद. जितने भी दुनिया में बाप हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद और तस्लीमात पहुँचे. एक बात ज़रूर मैं सबके गोश गुजार करना चाहूँगा, जो मैंने ख़ुद सीखा और सुना नहीं बल्कि सीखा और देखा. याद रखिएगा, आपके बेटे और बेटियाँ, उनका अगर कोई रोल मॉडल है तो वो उनका बाप है. माँ से मोहब्बत करते हैं, बाप से रोल मॉडल या सीखते हैं. आप अगर सच बोल रहे हैं वो सीखेंगे, आप खुश अखलाक़ी से बात कर रहे हैं वो सीखेंगे, आप बेईमानी कर रहे हैं वो सीखेंगे. तो जो आप कर रहे हैं आपका परतू आपकी औलाद है. तो याद रखिएगा, हम ये इग्नोर कर रहे होते हैं कि हम जो कर रहे हैं बच्चे छोटे हैं उनको क्या पता, या वो चले अल्लाह मालिक है, वो नहीं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं. तो एक अच्छा बाप बनिए. और इस फादर डे के मौके पे मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा ई आवाज़ का और आरफा मुजफ्फर साहिबा का. एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बहुत बड़ा टीवी चैनल, बहुत बड़ा आवाज़ का जादू है जो जाग रहा है. आरफा साहिबा बहुत शुक्रिया, ई आवाज़ बहुत शुक्रिया. सब आप सबको आदाब. आदाब. मैं हूं आमिर के बाप, जो कि घर का फैमिली का एक सरबराह होता है. उसकी हैसियत एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है ख़ानदान में. बेटा हो या बेटी हो, वो अपनी लाइफ की इंस्पिरेशन जो है वो बाप से ही लेते हैं. हैप्पी फादर्स डे. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम माहीन है और आई एम वर्किंग इन बैंक एंड मेरे वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान में होते हैं, कराची में, एंड आई मिस हिम अ लॉट. एंड मैं उनको हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहूँगी. और जितने भी अल्लाह ताला ने सबके वालिदैन को अपने सलामत रखें, सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए और सबके माँ बाप का साया हमेशा उन पे सलामत रहे. एंड हैप्पी फादर्स डे एवरीवन. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम फैसल अज़ीम. मेरे वालिद जब से इस दुनिया से गए हैं तो मैं तो तकरीबन रोज़ ही उनके हवाले से कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता हूँ. फिर जो विरासत उन्होंने मुझे दी है अदब की सूरत में, शायरी की सूरत में, वो हमारे जो रगों में खून बन के दौड़ रही है. तो मैं तो उनको कभी भूलता ही नहीं हूँ. जब भी कुछ लिखता हूँ तो वो मैं दरअसल उन्हीं का सिखाया हुआ, उन्हीं का जो दिया हुआ है वही इसी को किसी न किसी शक्ल में दोहरा रहा होता हूँ. तो मैं तो यही कहूँगा कि उनके हवाले से कि अब तो ऐसा है कि जिस रास्ते पे भी जाता हूँ मैं, जा बजा मानूस कदमों के निशान पाता हूँ मैं. तो बहरहाल फादर्स डे है, तो अब मैं अपने बच्चों के बारे में जब सोचता हूँ, उनको देखता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि हमें सोचना पड़ेगा, अगर फादर्स डे हम मनाते भी हैं या हम अपने बच्चों को हम क्या दे रहे हैं इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम उनको क्या दुनिया दे रहे हैं. ये हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हमने किया है, इसके नतीजे में हमारी अगली नस्लों को क्या मिलेगा, वो किस तरह का मुस्तक़बिल होगा उनका, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें अभी सोचना चाहिए. ताकि जब फादर्स डे आपसे 50 साल के बाद, 100 साल के बाद आए तो हमारे बच्चे कहें कि हमारे बड़ों ने हमें कुछ दिया है. तो एक नज़म के मैं तीन मिसरे जो याद आ रहे हैं वो इसे सुनाना चाहूँगा. वो ये कि तुम्हें अपनी दुनिया वरासत में दी है, सो शर्मिंदगी है कि हम अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं. तो बहरहाल मेरा ख़्याल है, मैं तमाम वालिदैन से ये कहूँगा कि सोचें कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए. और हैप्पी फादर्स डे. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.
My name is Rafiq Rukaria. I'm a former citizenship immigration judge and a former CRA audit manager. आज हम लोग जमा हुए हैं फादर्स डे के दिन पर. So सबसे पहले सब तमाम fathers को happy Father's Day. I lost my father. We came to Canada 52 years ago. I lost my father back in 1974. So, but the fathers are fathers. They're protectors. They're the guiders. और वो अपनी रहमत से और अपनी गाइड से एडवाइस से हम सबको गाइड करते रहते हैं. तो हम लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनके फादर हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करें और उनकी हमेशा बात मानें और उनका हमेशा ख्याल रखें. क्योंकि जब इस एज पे जब आते हैं तो बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, मगर अपने माँ बाप को आप लोग याद रखें. माँ बाप जो हैं वो बहुत बड़ा एसेट्स हैं, वो आपके गाइडर्स हैं, वो आपके प्रोटेक्टर्स हैं. तो आई विश ऑल ऑफ़ यू who have the fathers, look after them and wish them and look after them. A very happy Father's Day. God bless everybody. Thank you. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Good day, everybody. This is Khurshid Rukaria, Rafiq's wife, and so happy to be here to be talking about fathers. My father is my best friend. He's also Allah ko pyare ho gaye hai. He's with Allah, and mashallah, he was the best father ever anybody can ask for. Very nice, very loving, very caring, and I'm sure all fathers and mothers are like that. But what I would say is, like Rafiq said, माँ बाप जो है, daddies है, they are very important. We have to take care of them while we can. And even my dad is not here, but I feel that he's always here, blessing us all the time. And he's an amazing guy, and I hope and wish everybody have a father like him, inshallah. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम हैदर अली है. फादर्स डे आ रहा है और फादर्स डे के लिए मैं सबको कहूँगा कि इसकी सेलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है और फादर्स के बिना कुछ भी दुनिया नहीं है. तो आप लोग प्लीज़ अपने फादर जो अभी हयात हैं उनके लिए जो है ना दुआएं करें और उनको ताहयात हमारे साया रखें, और जिनके फादर्स इस ज़िंदगी में नहीं हैं उनके लिए दुआ करें. ये मैं मैसेज दूंगा पूरी कम्युनिटी का. थैंक यू सो मच. शाहिद हाशमी, सीमा हाशमी. हैप्पी फादर्स डे. फादर की दुआओं में बड़ी बरकत है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. इस फादर्स डे के मौके पर मैं ख़ुद बज़ात फ़ादर वालिद के मैं तमाम फ़ादरों को एक पैगाम देना चाहता हूँ इस टीवी चैनल के ज़रिए कि उन्हें चाहिए कि सिर्फ़ बाप के नाते बाप होने का जो एक फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को वो अपने से बेहतर इंसान और अपने से बेहतर जिस मुल्क में रहते हैं उसका शहरी बनाएं. मैं अपने तौर पे अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा कामयाब देखने की जो कुछ हो करना था, जो कर सकता, उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस लानी हो हर फादर को करना चाहिए ताकि वो अपने बाद एक अच्छी नस्ल छोड़ जाएं. और इन बच्चों को कामयाब देखकर मुझे लगता है कि फ़ादर उस वक्त कामयाब होता है जब उसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं. सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे और फादर डे है, तो मैं सब फादर्स जो हैं उनको कंग्रेचुलेट करूंगा, उनको मुबारकबाद पेश करूंगा. आपको पता है कि फ़ादर्स जो हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट शख्सियत होती है बच्चों की ज़िंदगी में. और मैं याद करता हूँ अपने फ़ादर को कि जिस तरह से मेरी परवरिश हुई, मेरे फ़ादर ने मुझे जो चीज़ें सिखाईं और जो वैल्यूज़ मुझे दी, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा एसेट होती हैं. और आई एम अ प्राउड फादर ऑफ़ 2 यंग चिल्ड्रन. और माशाल्लाह से जी मैं सबको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करूँगा इस फ़ादर डे के मौका पर. बहुत शुक्रिया. Assalamualaikum everybody, my name is Sundus, I'm a dentist and I wanted to wish everybody a happy Father's Day. My dad has really pushed me and motivated me and made my life really easy so I can focus on my studies and my career, and so I wish for more dads to do that for their daughters, and yeah, I wanted to wish everybody a happy Father's Day. बाप एक ऐसा दरख्त है, सायादार दरख्त है कि जिसके बग़ैर बहुत से पौधे
धूप के बीच में जल जाते हैं अगर उसका साया ना हो। और यकीनन हम तमाम जितने भी लोग हैं, हमारे वालिदैन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। आज हम जिस मकाम पे भी खड़े हैं और हमने जितनी भी कामयाबियां हासिल की हैं, ये मरहून मिन्नत हैं हमारे वालिदैन की और ख़ुसूसी तौर पे हमारे वालिद की तरबियत की। और ई आवाज़ के जितने भी नाज़रीन सामीन इकराम हैं, उनकी खिदमत में सिर्फ यही अर्ज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को रब कहा है, और उसके बाद अगर किसी को रब असग़र कहा है तो वो हमारे वालिदैन हैं। जबकि हम हर दुआ के बीच में, हर नमाज में ये दुआ करते हैं कि रब्बा यानी कमा या रब्बा यानी सग़ीरा, और उसके अलावा जो है हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का भी ये फ़रमान पाक है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि हमारे वालिदैन ने हमारे साथ जो एहसान का सलूक बरता है, हमें भी चाहिए कि हम उसके ऊपर पूरा उतरते हुए उनके साथ भी पूरी ज़िंदगी जब तक वो हमें मौजूद हैं उनके साथ एहसान के साथ पेश आएँ। मेरा नाम कैसर रज़ा है और फादर्स डे के मौके पर आई विश हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ द फादर्स। तो इस मौके पर मैं अपने वालिद मुरीद मेहदी साहब को खिराज तहसीन पेश करूँगा और ये कहूँगा कि जिस तरह की उनकी शख्सियत थी कि हर तरह के लोग, हर मकतब फ़िक्र के लोग उनके दोस्त थे और उन्होंने बहुत इज़्ज़त कमाई है माशरे से। तो मुझे भी ये ख्वाहिश होती है कि मैं भी उनके नक्शे कदम पर चल सकूं और इस तरह की शख्सियत बनूं जैसे कि उनके अंदर एक मियाना रवी, एक एतदाल और इंसान दोस्ती उनके अंदर नज़र आती थी। तो ये बहुत बड़े इंसानी ख़वास हैं। तो ये मुझे अपने वालिद साहब मुरीद मेहदी साहब के अंदर नज़र आए थे। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम भी ऐसे ही बन सकें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नईम एहसान और मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग है। फादर डे की मुनासबत से एक छोटा सा मैं एक दो लाइनें आपको गा के सुना देता हूँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Thank you so much and happy Father's Day.